Okay, hi guys, welcome back to my channel, you all. So today is 23rd of April and we roughly have 10 days for NEET. So my mom told me not to upload any more vlogs, and I understand her aspect of saying that, and so that's the reason I'm not doing it. I had some sponsorships as well which I wanted to do, but now I'm not doing. I'll do it afterwards, bro. NEET is more important than YouTube, right? Anyways, so आज मेरा एक FTS था and I was going in the morning. And I had an argument with my mother in the morning itself, and honestly speaking, I kind of knew that I'm the wrong person there, but it's so hard to admit sometimes. And in fact, I don't know, but it's just weird. Like, it's not wrong for them to expect anything from me because this is like my second drop, and them just, they don't say it out loud, obviously, but I know that they are expecting more. I know that I need to work more hard. I know that these are not the marks that they wanted from me, but at the same time I'm doing. It's not like I am not doing anything, and it just makes me even more sadder that I'm not able to make them happy or something like that. And I had that kind of an argument with my mom, very stupid one honestly, but I actually started to cry. But I was like, मेरे को exam के लिए जाना है, and I was going with my bike, and I was crying while going on the way. But after that I gathered myself because obviously I can't cry the whole way. But what else I can do about it? I have just these 10 days to do whatever I can. By the way, if you don't know, this is my second drop. And right now I am getting around 500 to 550 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में. द लास्ट CST दोनों में अगर बताऊँ तो CST 11 और 12 में एक में था 564, एक में है 552. So the scores are just dropping, it's just not going up. एक बार इन दो सब्जेक्ट में कम आता है, एक बार इन दो सब्जेक्ट में कम आता है. मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि विच चैप्टर आई एम लैकिंग, और या फिर वो तो मुझे पता है, आई हैव रोट डाउन जस्ट नाउ, बट इट्स जस्ट टू मच टू डू कि तुम एक बार रिवाइज करके जाओ, चलो ठीक है मेरा चैप्टर में कम तो मैं इसको सुधार रही हूँ, बट नेक्स्ट डे फिर और कुछ गलत होकर के पता चल जाता है कि ओ यहाँ से भी गलती हो रही है. सो इट्स बीइंग अ मेस, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी काम एंड ट्राइंग कि भाई 10 दिन है, करना तो है, कांट जस्ट रन अवे फ्रॉम हियर. And I'm honestly right now I'm at a stage where I don't know whether I'll get selected or not. It's like half. But if I'm being honest, I gave my all this year. If you will tell me that Hasina, I will give you one more year, or like just go back to this whole year and you wanna change some of the things, I would say no. I don't wanna change anything. Honestly speaking, I did everything that I could have done. I know it was not like I was studying the whole time, I didn't do anything else. I was studying most of the time, but I don't regret it at all, and I don't feel like I could have done it in this better way. No, that is the most I can give to this particular studies and all these things. So I don't have any regrets, or I don't have anything left that I could have given this. But at the same time, I want these 10 days also, like I gave my all. I don't want these 10 days कि मैंने last के 10 दिन में I haven't given enough, and that's the reason my score dropped. Because I know from here, either I can just stuck with this score or even get less marks in the NEET if I just give up, or if I just get into that negative loop, and I can improve if I don't get into that negative loop. And we never know what future holds for us, but the only thing which I know is that I want to give my best for these 10 days, and I don't know, whatever be the result, I get the college, I don't get the college, whatever, I'm just gonna accept it the way it is. And I'm not ready for another drop. I'm not gonna take another drop. Even if I fail, I will just do something else. I don't know what I will do, but I won't come back and be reading these same books. I just can't. Enough from my side. Okay, so much of heavy conversation we had just now. So right now let me just tell you a little bit of my plan. So today is 23rd. मैं कितनी बार बोल दिया, और अभी शाम के 6 बज रहे हैं. तो अभी मैं ना कल और आज का जितना भी दिन गया, मैंने बायो का 11th की बायो पूरी ख़त्म करी है. अभी मेरे 2 चैप्टर रहते हैं, प्लांट फिजियो के, प्लांट ग्रोथ वाला और रेस्पिरेशन वाला, तो वो मैं भी कर रही हूँ, जो कि मुझे टाइम लगेगा थोड़ा करने में. एंड उसके बाद आई एम प्लानिंग टू कम्प्लीट 12th का बायोलॉजी. तो माई प्लान इज़ कि आई कम्प्लीट दिस 12th का बायोलॉजी टिल टुमारो आफ्टरनून और समथिंग.
उससे पहले कंप्लीट करना, उससे ज़्यादा टाइम मैं इसको नहीं दे सकती, बिकॉज मुझे फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके फॉर्मूला मुझे बिल्कुल याद नहीं रह रहे हैं, दिमाग के ऊपर से निकल चुके हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे वो सारे चैप्टर्स रिवाइज करने, मैंने अलग से वो चैप्टर्स लिख रखे हैं, मैं वो चैप्टर्स रिवाइज करूँगी। फिर कल का हाफ डे एंड परसों का हाफ डे। परसों मेरे को CST देने जाना है 2 से 5:20 तक, तो तब तक मैं चाहती हूँ कि मैं फिजिक्स अच्छे से करके जाऊँ, और बायोलॉजी मैंने अच्छे से कर ली अभी, एंड केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक रिवाइज करके जाऊँ। मैंने ऑर्गेनिक मेरी ऑर्गेनिक बहुत बेकार थी अगर तुमको पता है तो, एंड उसके बाद मैंने उसको सुधारा है। आई वॉच्ड ऑल द लेक्चर्स ऑफ अविनाश शर्मा, आई विल पुट हिज नेम हियर, इट्स वेरी गुड, लाइक ही लिटरली टॉट NCERT। लाइक वो आप अगर अपने कंसेप्ट क्लियर है ना तो ढंग से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बारी मतलब डिटेल लेक्चर देखना पड़ता है। बट माई कंसेप्ट वर क्लियर, बट आई वॉज नॉट गेटिंग कि क्या इसमें याद करूँ क्या नहीं याद करूँ, एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एंड टू मच इन्फॉर्मेशन टू टेक इन। बट लाइक दैट वीडियो इज रियली हेल्पफुल इन एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड NCERT को कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है। सो या आई रियली वांट टू थैंक हिम। एनीवेज, तो पर मेरे को ऑर्गेनिक वापस रिवाइज तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब एक बार पढ़ते याद हो जाता तो फिर मैं यहाँ बैठ के परेशान नहीं हो रही होती। एनीवेज, तो वो मैं रिवाइज करके जाना चाहूँगी। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले, फिजिकल केमिस्ट्री फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट इज स्ट्रॉन्ग, इट्स गुड, सो मैं वो रिवाइज कर लूँगी। सिर्फ इनऑर्गेनिक वाला पार्ट ऐसा बचेगा जो मैंने नहीं करा रहेगा रिवाइज ढंग से, तो वो मैं छोड़ करके चले जाऊँगी, बिकॉज ऑब्वियसली आई कांट कंप्लीट एवरीथिंग। तो फिर 25 को वो CST देने जाना है। माई टारगेट इज टू स्कोर 600+ इन दैट CST, ठीक है। अब पूरा भी नहीं हुआ, पूरा होना चाहिए, ठीक है। पूरा नहीं हुआ तो भी सह लेंगे, बट इतना करके जा रही हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ओके। सो let's come along with me to prepare this, and I've got this idea of making it kind of a documentary kind of video, because today I was writing the paper FTS, and उसके बीच में मुझे आइडिया आता है कि हसीना, why don't we record a documentary kind of a video। आई नो तुम लोग सोच रहे हो कि पेपर देते देते मैंने पेपर पे ध्यान रख, पता नहीं मेरा दिमाग कुछ भी सोचता है भाई कभी भी। So that's what I thought, and I'm gonna be making it, it's gonna be so fun। तुम लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि how a person feels or what a person do 10 days before NEET। तो अभी तक तो आप सब लोगों ने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है। तो जो भी लोग ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में है, तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अड्डा 24/7 ने अपने ईयर लॉन्ग बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। सो इफ यू आर इन क्लास 11th यू कैन परचेज देयर टारगेट बैच, एंड इफ यू आर इन क्लास 12th यू कैन परचेज देयर अचीवर्स बैच, एंड इफ यू आर ड्रॉपर देन you can purchase their victory batch. So let me tell you what Adda 24/7 basically offers in their batches. So you are going to have interactive live classes, and there's going to be one test series with their video solutions, and class नोट्स वगैरह आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आपको एक्सेस मिलेगा ब्रिज कोर्स के लिए भी, एंड स्कोर कार्ड एंड उसका टॉपिक वाइज एनालिसिस भी आपको मिलेगा आफ्टर योर टेस्ट। एंड आप DPP की भी DPP प्रिंटेड बुक ऑर्डर कर सकते हैं, एंड उसमें आपको हर दिन की DPPs जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होंगे वो सारी एक ही जगह पे एक ही बुक में मिल जाएंगे, एंड आप उसको इजीली ऑफलाइन फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू एक्सेस देयर DPP बुक एंड देयर क्वेश्चन बैंक एंड नीट खजाना, then you should purchase their Maha Pack, which basically contains all these things along with the batches. And about teachers in the batches, so there is going to be the best faculty of India which is going to teach you physics, chemistry and biology. So for physics they have Tamanna Chaudhary ma'am, for chemistry it is Nitesh Devyani sir, and for biology there's gonna be Garima Goyal ma'am. So you should definitely check it out once. I will be providing all the links in the description, so go check it out. And you can use my code HS25 for extra 25% discount. Hey guys, today is 25th of April and time right now is 10:30. So I just took shower and now I'm gonna again sit to study. And right now I am doing physics. So physics, as I told you that I'm gonna complete whole physics, but guess who didn't complete it? It's taking a lot of time, I don't know, but there are so much formulas and I'm forgetting everything. मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, मुझे इसका जैसे और गुस्सा आता है। कल मैं फ्लूइड्स करने बैठी, ठीक है। फ्लूइड्स में इतने ज़्यादा फॉर्मूले में पता नहीं क्यों कुछ याद नहीं था उसमें, ठीक है। पहली बात तो फिर मैं उसको कर रही हूँ एंड इट टुक मी लाइक
1.5 hour to just revise short notes. Like what? And after that I was so कि भाई इतना ज़्यादा टाइम लग गया. उसके बाद फिर I decided कि वो उद्यान बैच वाला लेक्चर है वो देख लेती फ्लूट का, क्योंकि वो नहीं देखा हुआ था. एंड उसमें फिर 1.5 घंटे के आसपास चला गया. सो लाइक 3.5 ऑलमोस्ट 4 hours एक चैप्टर में. तो उस वजह से कंप्लीट तो नहीं हो पाया, बट वट एवर दिस इज वॉट इट इज. एंड अभी मेरे को 2 बजे पेपर देने जाना है, तो अभी जितना भी टाइम में मैं फिजिक्स थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ. एटलीस्ट वो चैप्टर कर लेती हूँ जो मुझे आते हैं, पता चले वो भी भूल के आ गई तो दैट्स नॉट गुड. सो अभी वो रिवाइज करती हूँ एंड देन आई विल गिव द टेस्ट एंड आई विल सी यू आफ्टर दैट. सो आई एम बैक ओके आफ्टर गिविंग एग्जाम. तो CST 14 में देकर के आ चुकी हूँ अभी. एंड द पेपर वॉज अपेरेंटली ईजी. लाइक I've given a lot of CSTs, तो अभी तक का मुझे सबसे आसान CST यही लगा है. इट्स आई डोंट नो कि इट्स बिकॉज आई हैव स्टडीड या फिर एक्चुअल में आसान था. बट या वो तो रैंक देखने के बाद पता चल जाएगा. अगर रैंक अच्छी आई है, मतलब पहले से बेटर आई है, तो मतलब हाँ मैं पढ़ के गई थी. और अगर सेम आई है तो मतलब हाँ पेपर को ज़्यादा ही आसान था. बाकी इफ़ आई टेल यू अबाउट द रिविजन स्टेटस, तो मैं फिजिक्स कर रही थी जैसे मैंने बताया था. तो फिजिक्स में जो 11th वाला पोर्शन है वो हो चुका है रिवाइज. एंड 12th वाला पोर्शन रहता है. मेनली तो मुझे 12th में रिवाइज करना है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड दैट मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर. आई हेट दैट चैप्टर. एंड वो पूरा रिवाइज करना है अपने को आज. एंड कल का भी पूरा दिन छुट्टी है कुछ इलेक्शंस की वजह से. तो एंड परसों एक एग्जाम हो रहा है विच इज़ FTS. तो मैं FTS ही दूंगी, परसों CST नहीं देने वाली. एक एग्जाम दूंगी, दैट्स इनफ. एंड उसके बाद है AIATS. तो कल का पूरा दिन हमारे पास ही है, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो सबसे पहले तो मैं करूँगी फिजिक्स कंप्लीट जितना पार्ट रहता है. एंड फिर ऑर्गेनिक रिवाइज करूँगी एंड फिजिकल रिवाइज करूँगी. इनऑर्गेनिक को मैं लास्ट में छोड़ रही हूँ बिकॉज मेरी मर्जी नहीं, बिकॉज कुछ तो करना ही है ना. तो इसलिए पहले मेरे को फिजिकल और यू नो ऑर्गेनिक करना है, बिकॉज वो अच्छे हैं मेरे, तो मुझे उन्हीं को करना है आगे. एंड इनऑर्गेनिक भी करेंगे जल्द ही, उसका भी बारी आएगी. एंड या मम्मी ने मेरे को मैंगोज कट करके दिए हैं, तो मैं ये मैंगोज खाती हूँ एंड फिर पढ़ना स्टार्ट करती हूँ. अभी 6 बज चुके हैं, अभी मेरे को टाइम हो चुका है थोड़ा. Now, hi guys. So I just woke up right now, and time right now is 7 a.m. So the thing is that yesterday I slept at around 10:30, and now I woke up at 7. So that's too much of sleep. I don't know. I've like put the alarm of I guess 5:30, but guess what, who didn't wake up? It is me, and I hate it, regret it, what to say bhai. Now I can't go back in time and change it. So जब जागो तभी सवेरा. तो I'm gonna start studying. and अभी मैं थोड़ा बायोलॉजी पढ़ने का सोच रही थी cause yesterday I got the answer key of CST and वो मैंने देखा. and guess what, बायोलॉजी में इतनी घटिया मिस्टेक्स करी है ना, मतलब वो देखने के बाद मुझे खुद को लग रहा था कि क्या है ये, कौन है ये बेवकूफ़ इंसान. Literally, like in biology out of 360 I just got like 305 or maybe 310, I don't know. And that's bad. That's just literally a bad score. Like you can't get this much in biology, bro, you just can't. And the mistakes were so stupid, like I can't even call them like silly mistakes because I just don't believe there's any silly mistake. They're just a stupid mistake. You are stupid that you made that mistake. It's like they asked के how many cranial nerves are there in the fro, and NCERT में 10 pairs लिखा हुआ है. I didn't even pay attention कि वो पेयर्स पूछ रहा है कि टोटल नंबर पूछ रहा है. वो टोटल नंबर पूछ रहा था और मैं 10 आंसर टिक करके चली गई. 20 आएगा भाई उसका आंसर. तो इट्स नॉट सिली, इट्स जस्ट दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन कि वो पूछ क्या रहा है, और अपनी मर्जी से आंसर दे दो. मुझे पता है, तो गुस्सा आ रहा है मेरे को उस पर.
Hi guys, so I am back from exam and आज था FTS 11. पेपर was pretty easy, honestly speaking. मतलब पेपर बहुत आसान लग रहा है आजकल, मुझे मजाक भी नहीं कर रही हूँ. It's like मतलब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना सामने, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है कि ओ इस क्वेश्चन में क्या ही पूछ लिया कि ये वो, कुछ नहीं. इट्स वेरी डायरेक्ट कि हाँ ये चीज दी है, ये निकालना. इट्स लाइक वेरी इजी. मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ. केमिस्ट्री में हाँ मतलब प्रेडिक्टेबल ही रहता है, बट मुझे इनऑर्गेनिक का डीएनएफ ब्लॉक याद करने की जरूरत है. मैं भूल चुकी हूँ डीएनएफ ब्लॉक, स्पेशली एफ ब्लॉक वाला पार्ट. एंड व्हाट एल्स, एंड ऑर्गेनिक सॉरी इसमें फिजिकल में आयनिक के फॉर्मूले भूल गई. भाई इतना आसान क्वेश्चन एकदम, मतलब इतना डायरेक्ट, इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम क्या ही पूछ लोगे टाइप्स क्वेश्चन. एंड उसमें मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है. वो आयनिक में वीक एसिड प्लस वीक बेस वाला फॉर्मूला, वो याद नहीं आ रहा था. सो इसलिए मैं इसको या तो करके नहीं या किया होगा तो मैंने गलती किया होगा. तो मुझे वो फॉर्मूले के लिख के याद करने. कल AIATS है, तो कल के लिए मुझे क्या क्या कंप्लीट करना बता देती हूँ एक बार के लिए. अच्छा, मैंने वो वेव ऑप्टिक्स अभी तक खत्म नहीं किया है. रे ऑप्टिक्स कर लिया, बट वेव वाला नहीं हो पाया. वो करना है. आज के पेपर में भी एक ही क्वेश्चन आया था वेव ऑप्टिक्स से, एंड गेस व्हाट, आई स्किप्ड इट. आई मीन ऑब्वियसली मुझे आता नहीं था, तो स्किप ही करना वाज द बेटर ऑप्शन. तो वेव ऑप्टिक्स तो देखते हैं, अगर मैं करूंगी तो शायद ही कर पाऊंगा. कल पेपर है एंड मेरे पास अभी आधा ही दिन है. तो इसमें मैं ना सोच रही थी कि केमिस्ट्री कर लूं. ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, कुछ ऑर्गेनिक नहीं करी थी मैंने रिवाइज, ठीक है. तो वो करनी है रिवाइज, क्योंकि मेरे को हो सकते हैं 4-5 दिन हो गए होंगे जब से मैंने ऑर्गेनिक नहीं करी है. एंड अब मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में भी ग्लिच कर रही थी. मेरा दिमाग मतलब समझ में नहीं आ रहा था रिएजेंट देख के कि यहाँ करके होना क्या है. वो वाला हरकतें हो रही थी, मतलब बहुत आसान नहीं था. मतलब ऑर्गेनिक का वजह से मैं वो रिवाइज करूंगी तो फिर शायद आसान लगे. एंड इनऑर्गेनिक भी करना है एंड फिजिकल भी रिवाइज करना है. फिजिकल में वैसे सब हो जाता है, 1-2 चैप्टर के 1-2 फॉर्मूले हैं जो कि ग्लिच कर रहे हैं, स्पेशली आयनिक के. तो हाँ बाकी सब तो ठीक ठीक है. एंड बायोलॉजी तो क्या ही बोलूं, लाइक व्हेन आई डू द क्वेश्चंस आई फील दिस इज द राइट वन एंड आई हैव डिड द करेक्ट वन. बट लेट्स सी हाउ मच वी गेट, बिकॉज अभी तक रिजल्ट नहीं आया, नई आंसर किया ये. तो जितने भी आते हैं आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट. एंड बाय द वे, yesterday's day was not that productive. It was like, I don't know, but I was not feeling yesterday's day. I was trying to study because I was like just 1 month left and was up, but I was not feeling it. And then I was like, you know what, I have some study clips and some vlog which I shot last time, so why don't I just upload it? And then that's when I edited the vlog yesterday and I've even uploaded it. And the response you guys give me, like, I love you. I love you so much for that. Like, some of the comments literally just makes my day and just so sweet. Like how someone can be so sweet to a stranger. That just literally beyond my imagination. So I'm really thankful to you all. I'll be putting some of the shout outs here. Thank you so much for being in this journey with me and always being so supportive and so sweet. Like sweetness doesn't cost you anything. मतलब तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, but it just makes somebody else's day. So be sweet. Yeah, that's it. And now I'm doing organic. मैंने already start कर दिया organic करना. As you can see, I was doing hydrocarbons. हो चुका है almost complete. And main organic में ना the things which I forget, it comes from like aldehyde वाले से लेके amines. These are the 2 topics which I forget. तो मुझे वो ज्यादा रिवाइज करना चाहिए. I start with these and यहाँ पे एकदम ऐसा you know everything, my energy levels and my confidence level, everything is high. But जैसे जैसे I start to reach at the end till like aldehyde और ketone तक, that's when my energy drops. And yeah, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी हाइड्रोकार्बन करने के बाद डायरेक्टली एल्डिहाइड पे चलते हैं एंड फिर आकर के वापस वो करेंगे कौन सा वाला, हेलो एल्केन, हेलोरीन एंड अल्कोहल वाला, कुछ दोस आर इजी फॉर मी. या सो दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग. एंड लुक एट द होल वॉल. पूरे पे मैंने कुछ ना कुछ लगा रखा है. दीस आर द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट आई फॉरगेट. ओवर अटेम्प्ट कर दिया आज. मैं लिटरली ये सुबह अफर्म कर रही हूँ उठने के बाद कि पेपर में वही आएगा जो मुझे आता है. जो मुझे नहीं आता वो पेपर में भी नहीं डाल. कट ऑफ, नो, वी आर नॉट देयर फॉर कट ऑफ. वी गोना गेट 650 प्लस एंड एम्स लेकर के रहेंगे. कोई तो एम्स मिल जाए, कोई अच्छी कॉलेज तो मिल जाए एटलीस्ट.